So today we will see about the sparse matrix. Now within this sparse matrix, what is a sparse matrix? So it is a matrix in which the number of zero elements, it is greater than the non-zero elements. So such a matrix we call it as a sparse matrix. Now within this sparse matrix we will see one of the example. Now here you can see that this is the example of sparse matrix. Within this, you can see that here total 6 rows are given. Okay, here total 6 rows are given and 6 columns are given. It means this is 6 by 6 matrix. Now here when we will write the row number, so we start it from row 0. Okay, we start it from row 0 to row 5. So here row 0, row 1, row 2 up to row 5. So these are our rows which starts from 0, and our column is also starts from column 0, column 1, column 2. It starts from 0 to 5. Okay. Now this is a sparse matrix. Why it is sparse matrix? Because here total 36 elements. Okay, here total 36 elements. It means this is 6 by 6 matrix. So it contains total 36 elements. So within this 36 elements, there are only 8 elements are there which are non-zero. Okay, there are total 8 elements are there which are non-zero. So out of 36, only 8 elements are non-zero. So we can say that this is a sparse matrix. Okay, because the number of zero elements, it is larger than the non-zero elements. So therefore this is the sparse matrix. Now we will see that how to store these elements in the tabular form. So here we will see one of the same diagram is there, and we will see that how to store that elements within the tabular form. So when we will see it, first within that tabular form we can see that there is a of 0 is given. Now within this a of 0 we write 6, row value is 6, column value is 6, and total value is 8. It means when we have to represent it, we can represent like this, that how many total number of rows are there. So total number of rows are there, so total 6 rows are there. Okay, total number of columns, how many columns are there? So total 6 columns are there. And how many non-zero elements are there? So total 8 non-zero elements are there. Okay, so total 8 non-zero elements are there. So it means from this you can see that we have from this we can say that there are 6 rows, 6 columns, and total 8 non-zero values are there. Okay, so that we have seen here. Now within this we have 6 rows, 6 columns, and 8 non-zero values. Now here, so total 8 non-zero values are given here. When we will write the non-zero values, at that time we write the row number, column number, and value. Okay, so in this way we will write it. Now for example you can see that here first non-zero value is 9. Okay, first non-zero value is 9. So this 9 is placed at 0th row and 0th column. So we can write it here at first. So here 0th row, 0th column, and what is the value? So value is 9. Now again the second non-zero element is 2. So 2 is placed at 0th row and 3rd column. So we can write it here that 0th row and 3rd column. So value is 2. Okay, that we have seen in the last lecture. So how to represent that sparse matrix in the tabular form. So the same we have done over here. Now we will see that how to represent that program. Okay, how to represent this sparse matrix in programming. So for that purpose, here I will share my screen to you.
Okay. So here okay. Okay. You can see the program. So here within this program, okay, I will share a notepad or some. Okay. So yeah, we will run our program over here. Okay. So here I will write our program for the sparse matrix. So here I will write a program to print a sparse matrix. Okay. So first what we will do, so first we will include the header file. Next, after including the header file, first we will write our structure. Okay. When we have to represent a sparse matrix, so at that time we have to represent it by structure. Okay. So how we will represent a sparse matrix? So for that purpose, I will write here struct. The structure name is sparse. Now within this, we will write only three values. Okay. So first value is int row. So int row, int column, and third value is int value. Okay, so we will save three values within the sparse matrix: int row, int column, and int value. So this is the representation of a sparse matrix. Okay, so you can write this as a representation of a sparse matrix. Now after this, what we will do, we have to take the values from the user. ठीक है, इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, तो हम यूजर से कुछ वैल्यूज लेंगे और वो जो वैल्यूज हम लेंगे, जैसे कि हमने एक मैंने एक अभी स्लाइड दिखाई थी, उस स्लाइड पे स्पर्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन था कि किस तरीके से वो मैट्रिक्स स्पर्स मैट्रिक्स होता है और उसको हम टैबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमने दिखाया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वो जो टैबुलर फॉर्म था वो हम यूजर से लेंगे। ओके, what is my input for sparse matrix? So whatever the tabular form I have shown to you, that will be my input. जब हम स्पर्स मैट्रिक्स का प्रोग्राम करते हैं तो हमारा इनपुट क्या रहेगा, तो जो भी हमने टेबुलर फॉर्म दिखाया था वो हमारा इनपुट है और फिर हमारा आउटपुट क्या है, तो आउटपुट जो भी मैंने मैट्रिक्स दिखाया था स्पर्स मैट्रिक्स। ओके, तो वो स्पर्स मैट्रिक्स हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रोग्राम करना है। हमें इनपुट और आउटपुट हमें समझ में आया है। अब समझ में आने के बाद अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, तो अभी हमने लिया है इंट में
इंट मेन के अंदर, ओके, मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, तो स्पर्स मैट्रिक्स का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ओके, जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब हमारे स्पर्स मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ये ज्यादा हो सकते हैं, बराबर है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक कुछ रैंडमली कुछ वैल्यू देती हूँ, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज आई विल राइट हियर यस ऑफ 10, ठीक है। तो यस ऑफ 10 ये एक रैंडमली वैल्यू दी। अब यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर फॉर रो, सी फॉर कॉलम, एंड नेक्स्ट इज आई, जे एंड के। तो आई जे हमारा मैट्रिक्स है, तो इसलिए रोज कॉलम के लिए हम फॉर लूप के अंदर हम आई और जे लिखते हैं, तो इसलिए आई जे लिखा, और के भी हमने इसी तरीके से इसी के लिए हमने लिखा है। ओके, अब हम देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं। तो स्ट्रक्ट स्पर्स यस ऑफ 10। सो फर्स्ट आई विल राइट दैट प्रिंटर enter the number of rows present in स्पर्स मैट्रिक्स, ठीक है। यानी आपका जो स्पर्स मैट्रिक्स है, उस स्पर्स मैट्रिक्स के अंदर आपको कितने रोज देने हैं, ओके। तो आपको कितने रोज देने हैं, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर द नंबर ऑफ रोज, ओके। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ रोज लेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे स्कैनफ, यूजर से हमें वैल्यू चाहिए कि जैसे हमारा पहला जो स्पर्स मैट्रिक्स था ये 6x6 का था, ओके। तो ये हमारा स्पर्स मैट्रिक्स 6x6 का था, तो यहाँ पे हमारा जो स्पर्स मैट्रिक्स होगा वो कौन सा डायमेंशन है उसका, ओके, कौन सा, कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, ये हम लेंगे। तो इसीलिए हम लिखेंगे %d, और यहाँ पे लिखेंगे हम एम्परसेंड r, ओके। ये आर हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो आर। नेक्स्ट, जिस तरीके से हमने रोज पूछे हैं यूजर से, उसी तरीके से हम कॉलम भी पूछेंगे। नेक्स्ट, एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम्स के लिए फिर से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, %c, और अब हम क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने, ओके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ मेनी नॉन जीरो एलिमेंट्स आर देयर इन स्पर्स मैट्रिक्स। तो कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स है, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे v, ओके। तो यहाँ पे ये आएगा %v, ठीक है। अब तक हमने क्या किया, हमने यूजर से पूछा कि कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, और कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स है। यानी जो हमारी फर्स्ट लाइन थी वो हमने फर्स्ट जो रो थी हमारी, तो वो हमने की। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो अभी हमें यूजर से पूछना है कि कौन से रो में कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, और उसकी नॉन जीरो वैल्यू क्या है, यानी जो भी टेबुलर फॉर्म था, तो अभी हमें वो यूजर से पूछना है। सो फॉर दैट पर्पज हियर आई विल राइट फॉर लूप। within that for loop what I will write, I is equal to 0, I is less than कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स है हमारे, तो कौन से वेरिएबल में स्टोर है नॉन जीरो एलिमेंट्स, बता सकते हो। नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन से वेरिएबल में स्टोर है, के के ची व्हॅल्यू आपण घेतलीच नाही ना, के की वैल्यू हमने ली ही नहीं। वी यहाँ पे हमने क्या किया, हाउ मेनी नॉन जीरो एलिमेंट्स आर देयर इन स्पर्स मैट्रिक्स, राइट। तो ये वैल्यू हमने कहाँ पे स्टोर की, v में स्टोर की। सो दैट्स व्हाई i is equal to 0, i is less than v, i plus plus, ओके।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर से उतनी बार हम रोज, कॉलम्स और एलिमेंट की वैल्यू पूछेंगे, नॉन जीरो एलिमेंट की वैल्यू पूछेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटर स्लैश एन, एंटर रो नंबर। अब ये जो रो नंबर हम लेंगे तो ये हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो ये जो स्पर्स मैट्रिक्स का रो है तो इसमें हम स्टोर करेंगे। ओके, तो किस तरीके से हम स्टोर करेंगे इसे, जैसे %d, कॉमा एम्परसेंड यस ऑफ आई यानी स्ट्रक्चर एरे ऑफ आई डॉट, और स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल है ROW रो, तो वो हमने लिखा है। ओके, तो इस तरीके से हम यूजर से रो वैल्यू लेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने रो वैल्यू ली है उसी तरीके से हम कॉलम वैल्यू भी लेंगे। सो एंटर कॉलम नंबर, और यहाँ पे आएगा scanf %d yes of I डॉट कॉलम। ठीक है, यूजर से हमने कॉलम भी लिया और उसके बाद हम लिखेंगे एंटर नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, एंटर नॉन जीरो वैल्यू, तो हम लिखेंगे scanf %d एम्परसेंड s of I डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूजर से जितनी भी नॉन जीरो वैल्यूज थी उतनी हमने यूजर से ले ली। यूजर से लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब ये जो स्पर्स मैट्रिक्स का जो टेबुलर फॉर्म था वो हमने कंप्लीट किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्पर्स मैट्रिक्स को प्रिंट करेंगे। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं, हमें स्पर्स मैट्रिक्स को प्रिंट करना है। सो दैट्स व्हाई आई विल राइट स्पर्स मैट्रिक्स इज। Okay, now after that I want to print the sparse matrix। sparse matrix आपको प्रिंट करना है तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, I is equal to 0, I is less than, रो की वैल्यू कितनी है, रो की साइज कितनी है, तो R में लिखा है, ये यहाँ पे हमने लिखा था ना एंटर द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, आपको दिख रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज, तो ये हमने यहाँ पे लिखा था, यूजर से लिया था। सो सेम I will write over here, so I is less than R, then I plus plus। ठीक है, नेक्स्ट यूजर से I की वैल्यू ली। नेक्स्ट आफ्टर दैट I will write for loop J is equal to 0। अब J किस लिए, कॉलम के लिए, so J is less than C and J plus plus। ठीक है, रो की वैल्यूज हमने यूजर से ली, कॉलम की वैल्यूज हमने यूजर से ली, और उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद अब हमें करना क्या है। ओके, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि जो डायग्राम है उसे हम समझाएंगे। ओके, हमने क्या किया था, हमने ये जो आपका स्पर्स मैट्रिक्स यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिख रहा है, ये हमने यूजर से लिया कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, नॉन जीरो वैल्यूज, वो हमने यूजर से लिया। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर लूप के अंदर हमने पूछा है कि रो नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है और उसकी नॉन जीरो वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से ये जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज होगी तो वो हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, उतना हम यूजर से लेंगे। अब क्या करना है कि ये डेटा हमारे पास है और इसके ये डेटा यूज करके हमें ये जो स्पर्स मैट्रिक्स जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है तो उसे हमें प्रिंट करना है। ओके, अब प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, हम हमें चेक करना है कि जैसे कि ये जीरोथ कॉलम जीरोथ रो जीरोथ कॉलम की वैल्यू यहाँ पे ली है क्या,
तो यस ली है। अगर यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में हमने वैल्यू ली है तो हम यहाँ पे देखेंगे जो भी वैल्यू है हमारी वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके नेक्स्ट, जैसे 9 वैल्यू हमने ली है। नेक्स्ट, 0th रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू हमने यूजर से ली है क्या? तो यहाँ पे है क्या वो 0th रो फर्स्ट कॉलम? तो यहाँ पे नहीं है। सो इफ इट इज नॉट देयर देन वी विल राइट 0। अगर ये इस टेबुलर फॉर्म में नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, 0th रो और सेकेंड कॉलम की वैल्यू क्या है? ये हमने यूजर से ली है क्या? तो यहाँ पे नहीं है, 0 और 3 वैल्यू है। तो 0th रो और सेकेंड कॉलम की वैल्यू हमने यूजर से नहीं ली। अगर नहीं ली तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, राइट। अब और एक बताती हूँ, जैसे नेक्स्ट वैल्यू है 0th रो और थर्ड कॉलम। तो 0th रो थर्ड कॉलम की वैल्यू यहाँ पे है क्या? यस है। तो 0th रो थर्ड कॉलम की वैल्यू यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे वैल्यू है 2, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू है 2, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा 2 रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारा जो टेबुलर फॉर्म है उसे चेक करके हम उसी तरीके से हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अगर वैल्यू हमने यूजर से ली है तो जो भी वैल्यू ली है वो उसी रोज उसी कॉलम में वो वहां पे प्रिंट होगी। अगर यूजर से नहीं ली है तो उस केस में वो वहां पे वैल्यू हमारी 0 आएगी। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ओके दिख रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे, तो सॉरी, ठीक है। सो हियर हमने क्या किया, so here we have written that hash include stdio.h, connew.h, struct sparse. Now within the sparse structure we have written int row, int column and int value. ठीक है। प्रोग्राम मैं टर्बो सी पे समझाऊं या अभी जो टैब ओपन किया था उस पे समझाऊं? कशावर समजावून सांगू? कारण की आता हा दिसतोय। प्रोग्रामवरती सांग मग. कुठे? प्रोग्रामवरती टर्बो सी वरती. Turbo Ceiver. Okay. So here struct sparse. Within the sparse we write these three values, that row, column and value. Next, within the void main we declare these three values, that is R, C, B, I and J. Okay. With this we will again write one more variable over here, that is K. Ma'am. Okay. So initially this K is equal to 0. Okay. We will see that why we will use this K. Now here we will declare this struct sparse as of 10. Now after that we have taken these values from the user, that enter the number of rows for the sparse matrix, enter the number of columns for the sparse matrix, and how many non-zero values are there in the sparse matrix. Okay. So we have taken these values from the user. Now after that we have again taken enter the row number, यूजर से रो नंबर पूछा है, कॉलम नंबर पूछा है, और यूजर से वो जो नॉन जीरो वैल्यू थी तो वो भी हमने पूछी है। सो ओके, सो एंटर द नॉन जीरो वैल्यू। तो यूजर से हमने नॉन जीरो वैल्यू भी पूछी है। जब पूछी है तब हमने वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर की है, जैसे एम्परसेंड यस ऑफ आई डॉट रो। ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो रो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसके अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर की है। तो इसी तरीके से हमने रो वैल्यू यूजर से ली, कॉलम वैल्यू यूजर से ली और नॉन जीरो वैल्यू हमने यूजर से ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें प्रिंट करना है स्पर्स मैट्रिक्स। तो स्पर्स मैट्रिक्स हमें प्रिंट करना है। सो फॉर दैट पर्पस हियर आई विल राइट दैट स्पर्स मैट्रिक्स इज, ठीक है। आफ्टर दैट this for loop is for row, this for loop is for column. ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम चेक करेंगे कि हमने ये जो जीरोथ रो है, जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम की वैल्यू हमने यूजर से ली है क्या, ये हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है। अभी मैं इसे करेक्ट भी करती हूँ। सो आई इज इक्वल टू यस ऑफ के डॉट रो। के की वैल्यू हमने क्या डिक्लेयर की है ऊपर, के इज इक्वल टू 0,
राइट। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, तो i की वैल्यू हमारी 0 है, सो 0 इज इक्वल टू यस ऑफ 0, जीरोथ रो की वैल्यू हमने यूजर से ली है क्या, सो जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम, तो उसकी वैल्यू हमने यूजर से ली है क्या, तो ये हम यहाँ पे यूजर से पूछेंगे। नेक्स्ट, अगर यूजर से वैल्यू हमने ली है तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। ओके, वैल्यू हम प्रिंट करने के बाद k की वैल्यू हम बढ़ा देंगे, k की वैल्यू हम बढ़ा देंगे। उसके बाद अगर यूजर से वैल्यू हमने ली है तो यहाँ पे ये वैल्यू, ये इफ स्टेटमेंट हमारे प्रिंट होंगे, और अगर यूजर से वैल्यू हमने नहीं ली है, इफ इट इज नॉट नॉन जीरो एलिमेंट, अगर वो जीरो एलिमेंट है तो ये डायरेक्टली इस तरीके से एल्स पार्ट में आएगा और जीरो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा, ये दोनों फॉर लूप हमारे क्लोज हुए। और नेक्स्ट, फॉर लूप क्लोज होने के बाद, ओके, तो फॉर लूप क्लोज होने के बाद हम यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज करते हैं। ओके, अब मैं प्रोग्राम कंपाइल करती हूँ, एरर नहीं है, देन आई विल रन माय प्रोग्राम। ओके, आपको दिख रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज फॉर स्पर्स मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, सो हियर नंबर ऑफ रोज आर 3, then he will ask me enter the number of columns for the sparse matrix। ठीक है, स्पर्स मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं। अब यहाँ पे आउटपुट में जब हम इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट देते वक्त हम छोटा मैट्रिक्स ले रहे हैं, 3x3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो इसीलिए हम 3x3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज आर 2। ठीक है, पहले हम इसे प्रिंट करके देखते हैं, और अगर ये प्रिंट होता है तो हम जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन था, जो मैट्रिक्स था 6x6 का, वो हम रिप्रेजेंट करके देखेंगे। ओके, नाउ हियर एंटर द रो नंबर। तो जैसे मैं कंसीडर करती हूँ कि मेरी फर्स्ट रो नंबर है, कॉलम नंबर इज सेकेंड, एंड द नॉन जीरो वैल्यू इज 7। ओके, आप इसे चेक करो कि हमारा स्पर्स मैट्रिक्स किस तरीके से दिखेगा। ओके, सो हियर अगेन enter the row number, so row number is second, my column number will be 0 and the non zero value will be 8। ठीक है, कितने नॉन जीरो वैल्यूज है, तो 2 नॉन जीरो वैल्यूज है। पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो कहाँ पे है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे, और जो दूसरा है सेकेंड रो जीरोथ कॉलम पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पर्स मैट्रिक्स मेरा, सॉरी, यहाँ पे हमारा स्पर्स मैट्रिक्स प्रिंट होता है। ओके, हाँ ठीक है, तो स्पर्स मैट्रिक्स यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा 0 0 0 है, ये जीरोथ रो है, जीरो फर्स्ट रो है, और ये सेकेंड रो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंटर द रो नंबर, तो पहली वैल्यू नॉन जीरो कहाँ पे थी, तो फर्स्ट रो पे थी। ओके, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये देखो जीरोथ रो और ये फर्स्ट रो, ये है जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे हमारी 7 वैल्यू प्रिंट हुई, बराबर है। और ये लास्ट रो थी यानी सेकेंड रो। ठीक है, तो सेकेंड रो में यहाँ पे सेकेंड रो जीरोथ कॉलम, तो सेकेंड रो जीरोथ कॉलम ये है, तो यहाँ पे हमारी 8 ये वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, ये 8 नॉन जीरो वैल्यू थी, तो ये यहाँ पे हमारी प्रिंट हुई। तो इस तरीके से हमने स्पर्स मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट किया है। ओके, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि हमारा प्रोग्राम क्या था। हमारे प्रोग्राम में हमने क्या किया, इनिशियली वी इंक्लूड हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद हमने स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है, स्ट्रक्ट स्पर्स, स्पर्स के अंदर हमने रो कॉलम और वैल्यू प्रिंट किए हैं, सॉरी डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद हमने कुछ वैल्यूज यूजर से ली है, यूजर से ये वैल्यूज हम लेंगे, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज, तो कितने हैं वो सारा हमने यूजर से लिया। यूजर से लेने के बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं कि कौन सा वो रो नंबर है, कौन सा कॉलम नंबर है और उसकी वैल्यू क्या है, तो ये हमने लिया फॉर लूप के अंदर। और उसके बाद हम स्पर्स मैट्रिक्स को
प्रिंट करेंगे। तो स्पर्स मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप यूज कर रहे हैं, ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि एक फॉर लूप के अंदर ये दूसरा फॉर लूप है, इसीलिए इसे नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। तो इस नेस्टेड फॉर लूप के अंदर पहला फॉर लूप हमारा रो के लिए है, दूसरा हमारा कॉलम के लिए है। और इसके अंदर अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या करेगा? ये चेक करेगा कि हमने यूजर से वैल्यू ली है क्या। अगर हमने यूजर से वैल्यू ली है तो उसका रो नंबर और कॉलम नंबर ये चेक करेगा। अगर दोनों हमने यूजर से ली है तो इस केस में ये जो भी हम वैल्यू हमने यूजर से ली है वो वैल्यू ये प्रिंट करेगा। अब के की वैल्यू हमारी हर बार इंक्रीमेंट हो रही है, तो इसीलिए हमारी आगे की वैल्यूज भी प्रिंट होगी, ठीक है। अगर हमने ये वैल्यूज यूजर से ली है तो ये प्रिंट होगा। अगर हमने यूजर से वैल्यू ही नहीं ली तो उस केस में ये एल्स पार्ट प्रिंट होगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमने स्पर्स मैट्रिक्स प्रिंट किया है। ओके, so here according to this we have print the spurs matrix. Now we have to make two more programs, that is write a program for the addition of spurs matrix and write a program for transpose of spurs matrix. So previously already you have done the addition of matrices and transpose of matrices. Okay, sorry, transpose of matrix. So already you have done that program. So it is the simple program for you. So here you have to write the addition of spurs matrices and the transpose of spurs matrix. Okay, so these are the programs that you have to write.